Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Now I think we have MSc class after so many days. Yes, sir. Yeah. Okay. So let us begin. Someone let me know what was going on, what we were doing. Sir, chapter. Tell me, someone. Om Kumar. Sir, Anyone? chapter 3 was completed. Chapter 3 completed. Okay, so we are going to start today then chapter 4. Let me open the book on the screen then. Okay, so this is chapter 4. Chapter 3 we have completed successfully. Yes, sir. Okay, so let us begin today. Chapter 4, we have very new chapter, that is do's and don'ts. Do you know the meaning of do's and don'ts? Can someone tell me? Can someone explain me? What is do's and don'ts? Om Kumar, Ritika Kumari, anyone? Saksham, okay, tell me. You can mute yourself and unmute yourself. No problem. I have unmuted, I think. Okay, I'm going to mute all. Sorry, unmute all. I'm going to unmute all. Okay, now you can reply. Question number 7 answered. In chapter 3, question number 7 answer is left. Yes, sir. Okay, Yes, then, sir. okay, then we will complete. No problem. A child dishonesty, if detected earlier, becomes a blessing in disguise. Explain how. So answer is written here. See, here it is written. A child's dishonesty, if detected. Answer is written, everyone, at page number 17. See, at page number 17. Are you able to see? Yes, sir. Last second paragraph. Yes, a child dishonesty, if detected earlier, becomes a blessing in disguise. At an initial stage, she understands the consequences of dishonesty and does not grow to become a dishonest man, woman. Only these two lines you need to write. Okay. You can write till here also, till fall. If delayed dishonesty results in disgrace, ruin, and sometimes imprisonment, the higher the height to which a dishonest man has reached, the greater and more painful is his eventual fall. You can write till here also, till woman, or you can write till here. If you want to write the short answer, you can write till here, 2 lines only, 2 sentences, till woman. If you want to write long answer, you can write till here. Okay? Sir, a child, two women. Yes, that is short. If you like to write short answer, you can write till here. And if you want to write the long answer, so you can write till here fall. Okay? Any problem? Yes, sir. Saksham? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay, so this paragraph, these 2 lines you need to write. Question number 7 also is completed. Now come at chapter 4 and someone let me know what is do's and don'ts. Can anyone explain me what is do's? What is the meaning of do's and don'ts?
No one. Sir, do's means that command. No. Do's and don'ts. Can anyone explain? do's Can means- anyone? You don't need to. do's- You don't need to explain only a word. You have to explain this. The title of this chapter: do's and don'ts. Meaning of do's and don'ts. So many students are here in the class. No one is able to explain the meaning of do's and don'ts. Okay, now let me tell you. Do's and don'ts means what things you have to do and what things you don't need to do. Means क्या करना है और क्या नहीं करना है. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. That is the meaning of, that is the exact meaning of do's and don'ts. मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है. आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. So do's and don'ts. Value, cultivate good habits. So the value of this chapter, cultivate good habits. After reading out this chapter, means इस chapter को पढ़ने के बाद हम लोग जो है cultivate good habits, मतलब अपने आप में कुछ अच्छी आदतों को लाएंगे. So let us begin. A habit is something that takes place automatically. See, the definition of habits is written. Everyone says in his or her talks only that this is my habits. सभी लोग सिर्फ बात करते हैं आपस में कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द बहुत यूज होता है कि यार ये तो मेरा आदत है, सुबह उठना मेरा आदत है, लिखना मेरा आदत है. इस तरह से लोग बोलते हैं ना, ये मेरा हैबिट है. बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ हैबिट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिट. ए हैबिट इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली. तो हैबिट उसे कहते हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप. अब जैसे किसी को सुबह उठने का आदत है तो अब उसको अलार्म लगाए या नहीं लगाए, कोई उठाए या नहीं उठाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो टाइम होगा वो उठ जाएगा. अब किसी का आदत है मान लो बुक्स पढ़ने का या फिर कुछ अच्छा लिखने का या खेलने का, किसी भी चीज का, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो ए हैबिट इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली. तो हैबिट एक्चुअल में वो होता है रियल हैबिट जो ऑटोमेटिकली हो जाता है. मतलब तुम उसको इतना कर चुके हो, इतना आदत हो गया है कि टाइम आने पर ऑटोमेटिकली वो तुमसे हो जाता है. दैट इज कॉल्ड हैबिट. If a person repeats an action unknowingly means जानबूझकर. नहीं, unknowingly मतलब हुआ नहीं जानबूझकर, knowingly मतलब होता है जानबूझकर. So if a person repeats an action unknowingly, it becomes a part of his character. It is called his habit. तो इसे ही हम लोग habit कहते हैं. Habits are of two kinds, good habits and bad habits. So let us discuss in details. An intelligent person adopts all the good habits and roots out all the bad habits. Roots out means गलत आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना. तो an intelligent person adopts the good habits. तो जो intelligent person होता है वो अच्छी आदत को अपनाता है. Adopts यहाँ मतलब यहाँ अपनाना. And roots out all the bad habits from his life. और अपने जीवन से बुरे आदत को उखाड़ फेंकता है. By doing this, he is able to develop a good personality and character. But this does not mean that a person with a good habit never does anything wrong. तो इस तरह से कोई इंसान अगर अपने अंदर से कोई बुरे आदत को बाहर निकालता है और अच्छी आदत को डालता है, तो इस तरह से वो इंसान जो है एक अच्छा इंसान बनता है. A good personality and character, मतलब उसका personality और character जो अच्छा होता है. But this doesn't mean that person with a good habit never does anything wrong. लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि जिस इंसान के पास अच्छी आदत है या वो बहुत सारा काम अच्छा करता है तो उससे कभी गलती होगा ही नहीं. ऐसा नहीं होता. चाहे कितना अच्छा इंसान रहे धरती पर, कितना भला करने वाला रहे, उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही है. All humans have the tendency to do wrong.
तो इंसान को बनाया ही गया है इस तरह से ऊपर वाले ने कि वो गलती करेगा ही। तो ऑल ह्यूमंस हैव टेंडेंसी टू डू रॉन्ग, पूरे इंसान का टेंडेंसी है कि वो गलती करता है, बट वी शुड हैव द पावर टू चेक इट एंड control it. For this, firstly, we need willpower. Willpower refers to the strong determination to do something. We should inculcate this willpower within ourselves. तो जितना भी रॉन्ग या गलत आदत होता है इंसान में, उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, मतलब एक कड़ा दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं, एकदम प्रण कसम खाना जिसे कहते हैं। कितना लोग होता है कि एक बार कसम खाता है कि हम ये आज से ये काम नहीं करेंगे अगर कोई बुरा आदत है, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही काम करने लगता है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। तो बुरे आदत को छोड़ा जा सकता है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके। Secondly, determination is necessary for living a bad habit. मतलब determination होना चाहिए, willpower. Determination refers to our desire to achieve a certain goal. तो determination को यहाँ explain किया गया है कि determination क्या चीज है। Determination refers to your desire to achieve a certain goal. Determination जो है वो तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे गोल को लाइफ में पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिगरेट स्मोकर नोज दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, yet he continues smoking. But if he becomes determined and wants to leave this tendency, he will surely overcome this bad habit. एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लो अगर किसी को सिगरेट पीने का खूब आदत है और वो उसको छोड़ना चाहता है, वो जानता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको पीता है। सिगरेट के डब्बे पर या कोई भी तंबाकू वगैरह कुछ भी होता है, वो लिखा ही रहता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो लिखा होने के बावजूद फिर भी वो उसको स्मोक करता है या सिगरेट वगैरह पीता है। तो ये है आदत, ऑटोमेटिकली होना, हैबिट्स। बट इफ ही बिकम्स डिटरमिन्ड, तो अगर कोई इंसान डिटरमिन्ड हो जाए, मतलब कड़ा संकल्प ले ले कि अब हम नहीं करेंगे, तो उसको छोड़ सकता है। Accepting your mistakes, saying sorry or thank you, and wishing people or other good habits. When you tell lie for something, you have to tell lie after lie to cover your first lie. क्या लाइन लिखा है ये, क्या लिखा हुआ इस लाइन का लाइन, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि when you tell a lie for something, अगर तुम किसी एक चीज को के लिए झूठ बोलते हो, you have to tell lie after lie to cover your first lie. तो फिर बाद में बार बार झूठ बोलना पड़ता है तुम्हारे पहले झूठ को छिपाने के लिए। Your mind will not be free and stable, but when you accept your mistake, you feel much better. तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, एक कहावत भी है हिंदी में ये सब, लेकिन उससे माइंड जो है फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपना गलती मिस्टेक कर लेता है और मान लेता है, तो फिर अच्छा महसूस होता है। तो ये तो था इतना सा ट्रेलर समझ लो, पूरा अभी स्टोरी बाकी है। अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। रामू स्पीक्स द ट्रूथ। अच्छा, सभी को आवाज आ रही है ना? आवाज में कोई प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग? नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर। ठीक है, तो आज हम स्टोरी को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि और भी अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि किसी ने कुछ मैसेज किया था कि सर थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दिया कीजिए, तो हम तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं अक्सर, लोअर क्लास के तो हिंदी में ही बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं है। Ramu speaks the truth. Ramu was not able to do his home assignment. He became very scared because his class teacher was very strict. तो रामू नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसने अपना होमवर्क या असाइनमेंट किया नहीं था, लेकिन वो बहुत डर गया था कि अब उसके टीचर जो है उसको मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि उसके टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। कभी कभी टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो बहुत छड़ी खाए, बहुत। हम लोग के टाइम में टीचर लोग बहुत मारा करते थे। तुम लोग के टाइम में तो मैगी और बिस्किट खाने वाले बच्चे लोग को एक छड़ी मारने पर भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो बस
इसलिए मारते हैं बहुत कम। फिर भी तुम लोगों में से कितने को लगा होगा क्लास 1, 2, 3 में थोड़ा बहुत लगा है कि नहीं? किसी को लगा है? सर हमको लगा था। अच्छा, चलो ठीक है। ऑल थ्रू द वे टू स्कूल रामू वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। ही वॉज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, शुड आई लाई और टेल द ट्रूथ। तो वो लड़का होमवर्क नहीं बनाया था और रास्ते में, पूरा रास्ता स्कूल जाने के टाइम में वो सोच रहा था कि हम टीचर को झूठ बोले या सच बोले। देयर वॉज ए सीवियर डिबेट इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में एक तरह का डिबेट चल रहा था कि क्या करें। इसीलिए इस स्टोरी का नाम पड़ा है डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करें और क्या ना करें। फाइनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज इनर conscience and spoke the truth. Sorry sir, I did not do the homework because. आखिर में क्या हुआ कि इसके अंदर की आत्मा जाग उठी और उसने टीचर को सच ही बोल दिया और बोला कि सॉरी सर, आई डिड नॉट डू द होमवर्क बिकॉज मैं होमवर्क पूरा नहीं कर सका क्योंकि मैं इधर है। अब नेक्स्ट पेज में, because I went to see a movie with my uncle, he said to his teacher. तब वो अपने टीचर से बोला कि हम अपने अंकल के साथ मूवी देखने गए थे। कौन सा मूवी देखने गए थे वो नहीं लिखा है, ठीक है, वो हम लोग को जानना भी नहीं है। The teacher smiled and said, since you have told the truth, you will not be punished next time. Remember to do your work before going for a movie. तब टीचर उसके खुश हो गए, बोले कि ठीक है तुम सच बोले तो छोड़ दे रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके रखना फिल्म देखने से पहले। रामू felt much better because he accepted his mistake and said sorry. तो रामू को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुशी हुआ। He thanked his teacher for giving him. वो अपने टीचर को जो है कि धन्यवाद दिया। Though Ramu made a mistake, he accepted it from the bottom of his heart. जबकि बेचारे रामू ने मिस्टेक किया था, लेकिन उसने अपना गलती जो है पूरे दिल के गहराई से एक्सेप्ट किया। मतलब अब वो लाइफ में दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल करके आया? गुड एंड ब्रेव पीपल ऑलवेज एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। तो अच्छे और बहादुर लोग, जो अच्छे और बहादुर हैं, अच्छे मतलब जो गुड हैबिट्स है जिनमें बहुत सारे, और ब्रेव बहादुर लोग हमेशा अपनी गलती को मिस्टेक करते हैं। और कितना लोग होता है अपना गलती करता है और अपना गलती मानते ही नहीं कि हम मेरे से गलती हुआ है। तो अच्छे लोगों को गलती मानना चाहिए अगर गलती हुआ है। Just as we say sorry or pardon when we do something wrong, similarly we must say thank you when we receive some favor from someone. जिस तरह से हम लोग सॉरी और पार्डन बोलते हैं, पार्डन मतलब माफ कीजिएगा, सॉरी के मतलब भी वही होता है मुझे दुख है। तो जिस तरह से हम लोग ये सब बोलते हैं, ठीक उसी तरह से अगर कोई हम लोगों के फेवर में कोई काम करता है कुछ भी, तो थैंक यू बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रामू कमिटेड a mistake by not doing his homework, but he said sorry to his class teacher for it. एग्जाम्पल के तौर पर रामू से गलती हुआ कि उसने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया, लेकिन उसने सॉरी बोला टीचर को, ठीक है। His teacher granted him pardon. उसके टीचर भी उसको माफ कर दिया। Now it was Ramu's moral duty to say thank you to his teacher with a smile. तो ये रामू का ड्यूटी था कि अब जो है अपने टीचर को वो खुशी खुशी स्माइली चेहरे के साथ थैंक यू बोले। तो अब यहाँ कुछ पिक्चर है जो कि तुम देख सकते हो कि कोई थोड़ा मोड़ा भी कुछ काम कर दे तो उसे हम लोग इस तरह के वर्ड से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को कुछ बोलना है या अपनी जगह से हटने के लिए कुछ भी, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपना काम अगर करवाना है किसी से तो प्लीज बोल के ही किया करो। अगर किसी से थोड़ा बहुत धक्का लग गया, जैसे इसके हाथ से इस लड़के को धक्का लग गया, तो चाय है, अब चाय गिर सकता है, तो इसने तुरंत सॉरी बोला। अब ये हेल्प के लिए नोटबुक या CWHW कुछ भी दे रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट थैंक यू बोल रही है। Words like sorry, excuse me, pardon, thank you, please, etc. are golden words. तो इस तरह का जो words है, ये सब जो हम लोग बोलते हैं अपने जीवन में, sorry, excuse me, pardon, thank you and please, ये सब golden words है। golden words मतलब सुनहरा शब्द। अब सुनहरा शब्द, ये golden words का मतलब क्या हुआ? इसका रियल मीनिंग ये हुआ कि ये सब वर्ड्स जो है दिल जीतने वाला वर्ड्स है। अगर कोई गलती हुआ, तुम फट से माफी मांग लेते हो,
सॉरी बोल देते हो तो मामला सलट जाएगा। अगर वहीं पर अड़े रहोगे, जैसे अक्सर रोड में बाजार में होता है कि साइकिल से थोड़ा धक्का लगा तो तुरंत सॉरी बोल दिए हल्का फुल्का। अब कोई अड़ गया कि नहीं धक्का लगा, वो बोल रहे नहीं आपने ही धक्का मारा, बोले नहीं मारे, अब लड़ाई शुरू। तो ये सब नहीं होना चाहिए। We must be generous using them. They help in impressing people and earning repute ourselves. तो ये लोगों को खुश करता है इस तरह का वर्ड। We all have good as well as bad habits. सभी के पास कुछ अच्छा आदत होता है, कुछ बुरा आदत होता है, but we should have the will power to root out. लेकिन हम लोगों के पास वो विल पावर होना चाहिए जो रूट आउट करे, मतलब जड़ से उखाड़ फेंके उस बुरे आदत को, रूट आउट द बैड हैबिट्स। हियर इज a small list of do's and don'ts for you. तो यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट दिया गया है डूज एंड डोंट्स का। डूज मतलब क्या करना चाहिए और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डूज को कि क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 क्या, यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, प्लीज एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आई एम सॉरी एटसेट्रा। तो हमेशा पोलाइट वर्ड, इस तरह के जो अच्छे वर्ड है वो यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर बाजार में या कहीं भी चल रही भीड़ है तो किसी को हम लोग बोल सकते हैं ना कि थोड़ा साइड हो जाइए भैया, अगर ज्यादा कुछ है। अक्सर होता है भीड़ में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत ही बुरा शब्द यूज कर देते हैं। अगर भीड़ में जाम में कोई फंस गया है, कोई रिक्शे वाला है, कोई ठेले वाला है, कुछ भी, तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भैया थोड़ा साइड हो जाइए। लेकिन कितना लोग क्या क्या बोलता है, अरे तुम साइड हुआ अभी देंगे कान के नीचे बजा के। तो इस तरह का बहुत तरह का वर्ड्स होता है जो नहीं बोलना चाहिए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, हमेशा अपनी गलती को माने। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करें। स्पीक द ट्रूथ, सच बोले। हेल्प द पुअर एंड नीडी, और जरूरतमंदों और गरीब लोगों का मदद करना चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड एनवायरमेंट क्लीन, और हमेशा अपने आस पड़ोस की जगह को साफ रखना चाहिए। अब डोंट्स में क्या है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट्स में कितना पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। क्या हुआ, कोई 9 points. 9 points. अच्छा 9 points. ठीक। क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग उसको समझते हैं। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। डोंट कवर एनी मिस्टेक्स बाय टेलिंग लाई, कोई भी गलती को छिपाना नहीं चाहिए झूठ बोल करके। डोंट गेट इनटू कंपनी ऑफ पीपल हु हैव बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, वैसे लोगों को दोस्त कभी नहीं बनाना चाहिए, या वैसे लोगों का संगत कभी नहीं करना चाहिए जिसको बहुत तरह का बुरा आदत हो। अब बुरा आदत बहुत तरह का हो सकता है, खाली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बुरा आदत नहीं है। जैसे कितना बच्चा स्कूल में तुम लोगों को मिलेगा, बोलेगा चलो खेलते हैं, चलो वो पेपर पेन पर टिक टैक तो होता है वो खेलते हैं, तो कागज बना के खेलते हैं, तो स्लीपिंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, बहुत तरह का चीज होता है। तो वो सब बच्चे से भी बचना चाहिए। डोंट स्टील एनीथिंग फ्रॉम योर क्लासमेट्स बैग, अब किसी के बैग से कुछ चुराना नहीं चाहिए। ये सब LKG UKG वाले बच्चे लोग करते हैं, तुम लोग भी LKG UKG में किए होगे, है कि नहीं शुभंकर? कभी LKG में UKG में किसी का टिफिन चुराया है? No, sir. तब तो ठीक है, लेकिन LKG के बच्चे लोग ज्यादा करता है। डोंट स्टील एनी मनी फ्रॉम योर फादर्स वॉलेट, पापा के वॉलेट से कभी पैसा नहीं चुराना चाहिए। डोंट यूज बैड लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों से बात करने के दौरान कभी भी कोई बुरा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए। डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेज फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क, होमवर्क नहीं पूरा करने का कोई भी बेवकूफ बहाना नहीं बनाना चाहिए, मतलब कोई भी आलतू फालतू बहाना। जैसे कि जब हम कभी क्लास 2-3 में पढ़ाते थे, या पढ़ाते हैं अभी भी क्लास में, अभी तो लॉकडाउन है ना, जो बच्चा होमवर्क पूरा करके नहीं लाता है तो छोटे बच्चे लोग कुछ से कुछ बहाना बनाते हैं। जैसे एक को हाथ में ऐसे छड़ी लिए डराने के लिए, तो बोलने लगा सर लाइट चला गया, सर मेरे घर में मेहमान आ गए। तो इस तरह का बहाना सब। डोंट वेस्ट वाटर एंड फूड, डोंट मेक द पब्लिक प्लेस डर्टी, पब्लिक प्लेसेस जो होता है उसको डर्टी नहीं करना चाहिए।
don't make the public places dirty. Basically, all humans are good and they do good things. But in spite of this, sometimes we are inclined to do wrong. We should have the courage to overcome this. We can do this with the help of prayer. Mother Teresa once said, I receive energy from my work, not from the food that I eat, but from my eternal food, which is my prayer. So we should connect ourselves with God. Prayer is major tutor for developing good habits and manners. Remember, a person with good habits and manners is loved, respected, and honored by everyone at all times. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये होना चाहिए कि सभी लोग गलती करता ही है, लेकिन गलती को सुधार लेना ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है और लोगों को प्रेयर भी करना चाहिए। तो मदर टेरेसा को तो जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो उनका कहना है कि प्रेयर सभी को करना चाहिए। प्रेयर से हम लोग जो अपने अंतरात्मा से ऊपर वाले को, भगवान से कनेक्शन अपना करते हैं और उसके बाद मतलब मैच करते हैं और कुछ हम लोगों को अंदरूनी शांति मिलती है वगैरह वगैरह। तो प्रेयर करना चाहिए सभी को, प्रेयर करना चाहिए। प्रेयर करने से अच्छे ख्यालात आते हैं माइंड में। तो तुम लोग सभी प्रेयर करते हो? कौन कौन प्रेयर करता है? जरा चैट बॉक्स में हाथ उठाओ तो देखते हैं। चैट बॉक्स में जरा हाथ उठाना, देखते हैं कौन कौन प्रेयर करता है, कौन कौन नहीं। सिर्फ 4-5 लोग प्रेयर करते हैं। शुभंकर, अंकुर, प्रियम सिंह, स्वीटी एंड यशी सिन्हा, रितिका। बाकी सब लोग प्रेयर नहीं करते हैं। क्यों? प्रेयर करना चाहिए सभी को। प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर नहीं करने से बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो नहीं करते हो आज से शुरू कर देना। चलो आते हैं बुक पर। हम लोग देख लिए कौन कौन प्रेयर करता है। अब सीधा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। व्हाट इज हैबिट? अब हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड लेते हैं, तुम लोग भी कॉपी और पेंसिल ले लो। एवरीबॉडी गेट रेडी विद योर कॉपी एंड पेंसिल्स। कॉपी एंड पेन, सॉरी, पेंसिल्स छोटे बच्चों के लिए। चलो व्हाइट बोर्ड लेते हैं और यहाँ से हम लोग बाहर होते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम स्टोरी समझने में? नो सर। No, sir. प्रॉब्लम? नो सर। आज तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके समझा दिए हैं। चलो क्वेश्चन आंसर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? व्हाट इज हैबिट? व्हाट इज हैबिट? चलो आंसर पर आते हैं हम लोग। आंसर तो फर्स्ट पेज में ही लिखा है। A habit is something that, चलो लिखना शुरू करते हैं। A habit is something that takes place automatically.
सब लिख रहे हो ना? ऑल ऑफ योर राइटिंग? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। देखो जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना लंबा छुट्टी मिला है सबको, तो इसका सही यूज करो। हम लोग जब छोटे थे तो इतना लंबा छुट्टी आज तक मिला ही नहीं था। How can a person develop his personality and character? इसका आंसर ढूंढते हैं बुक में। Sir, in page number 20, second paragraph. Second paragraph. How can a person develop his personality and character? Yes, all humans have the tendency to do wrong, but we should have the power. Okay, let me make it short. अपने लैंग्वेज में शॉर्ट करके बना रहे हैं। How can a person develop? We know that all humans have that tendency to do wrong, but with strong determination, but with the help of a person can develop and characters. चलो तुम लोग के लिए आंसर को शॉर्ट कर दिए कि we know that all humans have the tendency to do wrong, but with the help of strong determination, a person can develop his personality and character. Name the defining the two. Read out question number 3. Someone read out question number 3. Name and define the two things that are essential for living a bad habit. Essential बोलना, essential नहीं, okay? अच्छा, एक चीज बोलना है कि क्लास एंड होने में सिर्फ 3 मिनट बचा है, तो आंसर लिखते लिखते अगर क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो समझ लो टाइम हो गया।
और जो बच गया फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। Yes, sir. Yes. तो इसका आंसर एकदम ही आसान है। नेम एंड डिफाइन द टू थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग अ बैड हैबिट। मतलब बुरे आदत को छोड़ने के लिए दो क्या ऐसा चीज है जिसको हम लोग को अपनाना चाहिए। तो एकदम आसान है, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है। The name of two things that are essential Sir, आप that की जगह था लिखे। हाँ हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाई होता है वैसे ही ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। क्लास में भी ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखते हैं या ग्रीन बोर्ड पर, और यहाँ ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। मतलब हम टाइप कर रहे हैं और तुम लोग लिख रहे हो। वहां हाथ से लिखते हैं और तुम लोग लिखते हो, है कि नहीं? The name of two things that are living bad habits। अब क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये लास्ट मिनट चल रहा है। और following number 1, right? Strong willpower, और सेकंड नंबर पर डिटर्मिनेशन।